अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में धुंध सिर्फ मौसम नहीं होती, वह स्मृतियों की तरह धीरे धीरे उतरती है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच तानी समुदाय बसता है, एक ऐसा समाज जहाँ जीवन के नियम कागज़ों में नहीं, लोगों की यादों और परंपराओं में जीवित रहते थे। इन्हीं तानी समुदायों के भीतर आज हम मिलते हैं एक ऐसे समाज से जो काफ़ी विकसित था, निशी समाज। निशी समाज में विवाह से जुड़ी कई परंपराएं रही हैं और उन्हीं में से एक है न्यदा। न्यदा ऐसी ही एक परंपरा है जिसकी जड़ें नेमे हबनम में मिलती है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन अरुण प्रभा के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं निशी समाज के एक ऐसी लोक अभिव्यक्ति के बारे में जो सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि एक स्त्री के जीवन की कहानी है। इस शीर्षक का नाम है निमे हबनम। निमे हबनम, जिसे हम आम तौर पर एक स्त्री का विलाप भी कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ केवल एक दुख की अभिव्यक्ति नहीं है। ये उन भावनाओं की कहानी है जो शब्दों में बयान नहीं कर पाए और एक गीत बनकर सामने आई। इस कार्यक्रम में हम निमे हबनम को सिर्फ एक परंपरा के रूप में देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम निशी महिलाओं के अनुभवों और उनके जीवन की यात्रा को सुनने और समझने की एक पहल है। इस कार्यक्रम में हम किसी परंपरा को ठेस पहुंचाने नहीं जा रहे हैं या उन पे फैसला सुनाने नहीं जा रहे हैं। ये एक सुनने, समझने और संवेदनशीलता से इस परंपरा को देखने की एक पहल है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कहानी को दिल से महसूस कीजिए। Anengo tamengo ngakebu anege disibu huchini dulubu tum topam doge toso mang tamyo tene kala ngakebu abuge abubu achige nyodang bu sangrang yang so bagu burahini doge toso mang tamyo tene kala ngakebu anege ngakebu abuge subuge dore tename anengo tamengam pulang be tesenga debe nugo mangtamyo tene kalo hebebu mabdi ngakebu abuge jusuge dore tename anengam tamengam pulang be tesenga debe tede nugo mangyayo tene kalo hebe mabdi anega tamengage gartebu sokuni subuge dore te kuname ngakebu abuge jusuge dore taname anenga tamenga garte sokuni jusuge dore teye kuname anenga tamenga tongbe teginga duke benike subuge dore teye kuname anengam tamengam bako teginga duke benike jusuge dore teye kuname ngakebu analo ngakebu abalo ngakebu anengam tamengam lanuge tokulo selminge nogonge gone tebeka anengam tamengam ngakebu abalo ngakebu analo lominge nogolo। एक ऐसा समाज जहाँ रिश्ते लिखे हुए कानूनों से नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सामूहिक समझ से आकार लेते थे। यह विवाह सिर्फ दो लोगों का निर्णय नहीं था, वह परिवारों, वंशों और पूरे समाज के लिए जुड़ाव का एक तरीका था। nasang ana ba nyem ko am anyung ku da ba nyobam sem pakuna e nyem se ko namam
ngul so nyem ka no bi ngam ker pupum ker sem ga ni kon re hala albi do hoge nga an awe nyubu galoge hogna ke sebe na gyo pakune ije na gyo pakune ho ga ngam sol sebe nyubam na lai ko le nyubu nyoklo se lai ko sebe pa ne nyera bang ming mo gri ko na la na hoge pa nyera bang ming mo gri ko hoge no ane no abu no ni mingyo ji pa kun re mingyo to klare ngam sol sebe nyubam na lai ko ngam anya ka ser ma gari ko ne o aci pa ino no le ugna ke ni asa nyamam no rigyo ji pa kon re o ngam sol na lai ko sol sebe ngam na lai ko nyubam me ming mo madar ma sa me ming mo gari ko na la na nyem ko mang so an ablaga sang tung bar ko nyem ko mangama ngo nga abu ge talo namro ngo aloge ngul na sanga so tum ngam so na ki na rupiang na do tar ka dan an abu ge so ge igi iriam bang sil do ti ha mang dan kal na mang na makal na ha mang ko na o sol ngam nyem ko ngam nyubu ga bu digri ko gal na o nga anage o so ge pachang udung sing popum disu ci dolo dum to bana o ri tung ring o kalam an gari nam so ril do ti bangal do ti heb mangal do na ka mangal do na makal na heb sangal do na makal na mangal heb mangal sangal do kana mam so heb mang kuna masol ngam nyu ga ku ni ke nyu alo ge ka tang ka ta sabuna na me ijina na me ngam nam rongo so ngul go nam so anya dom da ba alo ga nal ngam dom da ba na sang dong no ga mang ya hang ko nga an abu ga alo subu dor ju su dor ta ko na ngam alo nyu ga ko ni ka jid ko nyu ga ngam de gyo la ni de dung to ko na la ka ko yung bi na me help la o ga ana aba no ebo ke pa ko ni da ja na ja ko kam ngam ta sang lo ji ga la o ta lu lo ji ga la ngam निमे हबनम शिकायत नहीं है, ये स्वीकार है, ये विरोध नहीं बल्कि अपनी पीड़ा को मान्यता दिलाने का तरीका है। ये वो क्षण है जब एक बेटी बिना कुछ कहे भी सब कुछ एक विलाप गीत में कह देती है, जिसे सुनकर सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का भी दिल पसीज जाता है। उसी गीत को हम आम तौर में निमे हबनम के नाम से जानते हैं। जब विवाह का प्रस्ताव आता तो निर्णय केवल 2 परिवारों तक सिर्फ सीमित नहीं रहता था। पुरोहित या फिर शमन को बुलाया जाता, जो विधि पूर्वक अनुष्ठान करता और मुर्गे के जिगर के माध्यम से शुभ संकेतों की जांच करता। Ngolo na sange kolo ke po ke ngam nya ke po alo ga nya me su de nya ga ngo su de ching ma e ma be nga ke ku nyam ko bangling ko ban lo kam no nam ngo jitarin la hele bi bana me o ku bangling ma ri ko ni ke ku ho nyam ko bangling ri ko nyo ge bangling ma de be ngul na sange sor ta na me o ge ngul na sange o bangling ri ko ni jaman nyakam tak ka nyakam taka nije relation e bana me ku nya jar kwam anya nyung ke 12 bosor kamada 7 bosor debe oga ma kari kunyi an awe ungrang bile to kelas nyuwe se ko bana o nyaga ga an ab kala me se ko bana me tapya per na me ke oga nyaga o ke mari kunyi o sor o ke tamla da kuna mana me ke da kuna me nyaga ko baling bangra pri kunyi oga nyel darga na me ke oge jitarin oge jimatarin no udugo da paku udugo adinga na paku ije na paku uri oke na paku dingkyo nga dingbere da paku eba na me bitetalo o nye yu kumari kunyi oge oke ngam tamil dan wam kam mingna me ke
o nyem ko kicho mane pasar la kasipa ma ka ba I o ka tunggu ne lakchang am tek tung la ka te pa ha ja ka ana ba mani kuma nyue mani kuma o ka 76 tak o kahani nga do na ma ke o ga be ana o ka nge kue nyejar jar ta ba sangari kunye nyejar jar ta sang ter pe kol kue ka jo kabra bri kun I o abe kabde ne ke am ngotet ne ke nga ke bo o kualo o abung o gingda bu palala nyulugo o benego o yo yo bo tamake lada bu palala nyulugo o mingo bu o tamake ngo anego o gingtego o gingri ketala abung o abung anege biatego o biari ketala ngo lalang lari la nyulugo o mingyo ketala o gingda bu palala benego yo yo tala ngo ngakebo o kualo o namango putupe cingbu ke putupe gungnyang ke putupe tubne make gake kualo gake bo kualo si kulo kahani oi bade निशी समाज की रस्मों और परंपराओं के बीच ये गीत एक अहम भूमिका निभाता है। ये उस समय गाया जाता है जब एक पिता और भाई का दिल शब्दों के बोझ से भारी हो उठता है। वो भी कुछ कहना चाहता है अंतिम बार, और उनके शब्द सुर के हाथ थामे गीत के जरिए बाहर आते हैं। anege dudu ke selebeke bintu gelang nebeke abange oke beke debege charine gidune go pungul do take tagi kam chings do e ngul galong na sang tagi ke more tagi apung pungri yugu petang jar kum den e kalam o papung gerung do be teru te tabaka ngage kualo ngage sayang dutar ga sang tong bak bintu ke selebek bingyang selebek sang babak ngo mingyo tala yo tala ngo ke ma ke nam ngo yu na ma ke mingyo tala ngo yu na ma ke yo tala yu na ma ke he ma be nga ge nyang ne ge kulu ga atu ge abu ge nyang ne ge gab ngo narba gab ke chaka gab sangal alab sangam dab nyang ne gab ke ngo jigari ne। ये गीत उस बेटी उस बहन के लिए होता है जो एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने वाली होती है। वे उसे मजबूत रहने की बात कहते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि जीवन आगे चलकर उससे बहुत कुछ मांगेगा। वे कहते हैं तागिक के पेड़ की तरह बनना, जो पूरी तरह खिलने पर हर तरह के पक्षियों को अपने पास खींच लेता है, और नदी के बीच खड़ी उस चट्टान की तरह बनना जो कितने भी तीव्र बहाव में अपनी जगह से हिलती नहीं। इस गीत में आंसू भी होते हैं और एक अजीब सी शांति भी, क्योंकि जब कोई पिता या भाई अपनी बेटी अपनी बहन को मजबूत होने का आशीर्वाद देता है तो वह सिर्फ विदा नहीं करता, वह उसे जीने के लिए तैयार करता है। कुछ बातें कहने से ज़्यादा महसूस की जाती है, और ये गीत उन्हीं बातों का एक रूप है। मेरा नाम नाबुम पुणे याब है। हम याब में शादी आ गया, मतलब पहले शादी नहीं आने का आगे में एक बार अलग जगह में हमको मेरा चाचा चाची लोग शादी दिया है। वो भी चोरी चुप के उधर बात करके हमको तानने दिया है। पूरा आदमी उतार कर 30-40 जन का आदमी लेके उधर हम लोग का घर में जाके हमको पूरा पकड़ के खींच के घर में लेके आया है। उधर भी हम पूरा पेट किया है, लेबर दिखाए, मुर्गी को मारने दिया है, लेबर दिख के अच्छा होगा ऐसा बोला है। अब मेरा दिल में तो अच्छा नहीं होगा, हम तो पसंद ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती करके उधर में हम 7 डेज 8 डेज बैठा है, लेकिन कुछ भी नहीं खाया है, पानी सिर्फ पी के बैठा है।
तो उधर से हम भाग के वापस अपना घर वापस आ गया, माँ का घर। o nguluge o kenge nasange o nyem kwam o nyub nam jeleri nyub nam jeleri kun nyem kwe ki ala lai kul kiid kunai o kiid kunam tapya laga perdna tapya mane so sangpo aku ngam ta akotel nai o ta akotel o laga so udar gojale tachuble dina every din na kun ngob nga anyo dokat na oge tungge tu imi erap kala lail onyang na okelai banging pahel heb kege anya bangming sube ka dosu kege anya bangming sube ka do ek tapya laga mama bakam anya sang bambu ka dos na me ngul sanyang sol o nyo de tu sol mor do kuma ngul so sol mor do kuma ham rimaduku sije areng o kengam ching kul riju mejam o kengam ching kul o dine sol do kuma o alena every pan ridnala o sol an abe kam kuam ku nyamam tam kuma oge o an abe ku ngam kam nyem ko kerga aj kuma na sanyang sol mane nyem kwe ate kal nyaga na do helalail onye ku ya kenyang nam kapa jit kuna sanyang sol nai an abe nyang me kapa kuma ku ya ke kapa le sanyang sol nyang bang kuna o an abe os laga support mate den la sanyang sol every kula मैं भी यहाँ ये बात करना चाहूँगा जो हम लोग का जो नस्ल का समाज में जो हुआ करता था, तो मैंने भी देखा वो चीज़ को, जो लड़की को अपना बेटी को ज़बरदस्ती, या तो मैं वो तो बेटी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा माँ को होते हुए मैंने देखा था। मेरा माँ 2 माँ था, एक तो अभी नहीं रहा, अभी है। और उसमें ऐसे हुआ था कि चीज़ जो वो माँ जो ये हुआ था उसको ज़बरदस्ती ऐसे एक यहाँ में ये एक काट टाइप का, हम लोग उसको लपिया बोलता है, हिंदी में क्या बोलेगा उसको पता नहीं है, इंग्लिश में क्या बोलता है उसको पता नहीं है, तो लपिया बोलकर एक पैर में फंसाया करता था। देखा था मतलब चीज़ हम उसी समय में लगभग 5 या 6 साल ऐसे हुआ था, वो ये था मतलब ऐसा छोटा इस था, तो इसीलिए अच्छा से याद नहीं है। सिर्फ उन लोग क्या बात कर रहा उसको भी थोड़ा इतना डिटेली हमको मालूम नहीं, उन लोग बात कर रहा था, सिर्फ वही देखा था माँ जो रो रहा था, ये मेरा ये जो। और उसका बाद बस्ती में भी देखा, कहीं कहीं जगह पे देखा, बस्ती में भी ऐसे ज़बरदस्ती करके किसी बुढ़ा का साथ, किसी उससे ज़्यादा ये ज़्यादा उम्र का साथ ज़बरदस्ती वो शादी करते हुए देखा था। उसको भी खींच कर लेकर आकर उसका बाद उसको ये बम्बू या तो एक पेड़ बड़ा सा एक कुंडा एक फंसाया करता था, उसको देखा था। जो मैंने ये मैं चौथा में देखा करता था कि मतलब उसको जंजीर लगाते हुए, तपिया लगाते हुए, उसको इतना याद नहीं है, उसको वो चीज़ को अभी याद नहीं है, मालूम भी नहीं था किस लिए लगा रहा है, उसको भी पता नहीं था। तो लेकिन जब बात में बड़ा होते चला, तो उसका बाद मुझे भी ऐसे लगा कि मतलब वो चीज़ जो थोड़ा ये है थोड़ा गलत है, मुझे भी ऐसे लगा मतलब वो चीज़ जो गलत है। लेकिन तो उसमें फिर मैंने देखा कि मतलब चीज़ जो उन लोग का जो सोच है और बड़ा लोग का सोच है, जो उन लोग जो करने वाला उसी समय में उन लोग के हिसाब में मतलब वो उन लोग का हिसाब से उन लोग सही था, क्योंकि उसी समय में ना कानून था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसमें हम लोग का यहाँ में ऐसे था अपना हिसाब से एक रूल बनाया करता था उसी समय में। जैसे कि एक गांव में अलग आप दूसरा ये में ट्राइब में दूसरा एक जैसे कि एक रूल बनाया करता था, वो रूल को ही उन लोग फॉलो करता था मतलब। लेकिन अभी जितना भी बोलो वो सब भी नहीं करता है, लेकिन जितना है बोलो अभी तो लड़की लड़का जो बड़ा होकर आया है, तो जो हर कोई यहाँ में सब ये हो गया, पढ़ाई लिखाई जब शुरुआत हुआ उसका बाद जो ये होना शुरू हो गया, तो डेवलपमेंट शुरू हो गया, तो उसका बाद हर कोई अभी तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। सच बोलने से लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लड़का भी अभी हम लोग का सोसाइटी में ऐसे है, लड़की और लड़का में कोई फ़र्क नहीं है, तो उसमें जैसे लड़का को फ्रीडम होता है लड़की को भी ऐसे ही फ्रीडम करता है। अभी वो सब चीज़ तो अभी वो चीज़ अभी नहीं है। ताप्या अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। ये किसी को दंड देने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस समय की हिरासत की व्यवस्था थी। उस दौर में ना तो पुलिस व्यवस्था थी और ना ही पुलिस थाने की कोई अवधारणा। ऐसे समय में समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदायों ने
ताप्या प्रणाली का सहारा लिया। ताप्या का प्रयोग उन व्यक्तियों को रोकने के लिए किया जाता था जो चोरी या अन्य सामाजिक अपराधों में लिप्त पाए जाते थे। ये व्यवस्था पुरुषों और महिलाओं दोनों पर समान रूप से लागू होती थी। उस समय की जनजातीय समाज व्यवस्था मुख्य रूप से आत्मनिर्भर कृषि पर आधारित थी। जहाँ जीवन यापन सीमित साधनों में होता था, ऐसे में किसी व्यक्ति की निरंतर निगरानी के लिए अलग से लोगों को नियुक्त करना संभव नहीं था। इसी सामाजिक और व्यवहारिक आवश्यकता से ताप्यातानम की परंपरा अस्तित्व में आई। इसीलिए ताप्यातानम को सजा के रूप में नहीं बल्कि अस्थायी हिरासत की व्यवस्था के रूप में समझा जाना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जो उस समय की सामाजिक संरचना और परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुई थी। आज जब संगठित पुलिस व्यवस्था, कानूनी ढांचा और सुरक्षाकर्मी उपलब्ध है, ताप्या जैसी पारंपरिक व्यवस्थाएं अब प्रचलन में नहीं हैं। समय के साथ समाज बदला है, व्यवस्थाएं बदली है और ताप्यातानम अब इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। संस्कृति किसी पत्थर की लकीर नहीं होती, वह बहती नदी की तरह होती है जो अपने स्रोत को याद रखती है लेकिन रास्ता बदलने से डरती नहीं। जब परंपरा सवालों से गुजरती है तब वह टूटती नहीं, वह सच में परिपक्व होती है। तानी समाज में ये बदलाव महिलाओं की समझ, अनुभव और साहस से संभव हुआ है। वे अतीत को थामे हुए हैं पर भविष्य की ओर नज़र भी रखे हुए हैं। जो कभी सिर्फ रिवाज थे, आज वे चेतना, सहमति और चयन से जुड़ रहे हैं। ये कहानी न किसी आरोप की है न किसी सफाई की। ये कहानी है समय के साथ बदलती संस्कृति की और उन स्त्रियों की जो हमेशा से उस संस्कृति की आत्मा रही है। आज हमने नीमे हबनम को सिर्फ एक लोकगीत के रूप में नहीं देखा बल्कि एक स्त्री के जीवन की आवाज़, उसके अनुभवों के रूप में देखा है। आज ये कहानी किसी परंपरा को दोषी ठहराने की नहीं है या किसी बीते कल को सही ठहराने की नहीं है। ये एक कोशिश है, एक कोशिश उस जीवन के लिए जो शब्दों में नहीं बल्कि गीतों ने सहारा दिया। समय बदला और समाज भी बदला और इसी के साथ साथ महिलाएं अपने जीवन और अपने निर्णयों को खुद शब्द देने लगी। फिर भी नीमे खबनम जैसे गीत आज भी समाज में हमें याद दिलाते हैं कि भावनाओं की अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। और इसी के साथ दर्शकों, आज हम हमारे इस एपिसोड को विराम देते हैं और हम फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।